اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کی خیرات سمیٹنے والے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، بندگی اور معرفت کے اس طویل اور تھکا دینے والے مگر انتہائی پرنور سفر میں آج ہم 22 منزلیں کامیابی سے طے کرنے کے بعد 23ویں روزے کی دہلیز پر آ پہنچے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جسے صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ روح کی تڑپ اور بندگی کی جوانی کا نام دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور آخری عشرہ، جسے عشرہ نجات یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کا وقت کہا جاتا ہے، اپنی پوری شان اور اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہے۔ آج 23واں روزہ بندگی کی اس کیفیت کا مظہر ہے جہاں بندہ مادی دنیا کی تمام قیدوں سے نکل کر مکمل طور پر اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ پچھلی 24-25 راتوں کی بیداری اور ان 22 روزوں کی مشقت نے انسانی جسم کو پگھلا کر اور کثافتوں سے نکال کر روح کو اس قدر ہلکا اور لطیف بنا دیا ہے کہ اب اسے سجدوں میں بوجھ نہیں بلکہ آسمانی پرواز محسوس ہوتی ہے۔ مفسرین اعظام اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ 21ویں رات کی شہادت مولا علی رضی اللہ عنہ کے غم اور خصوصی عبادات سے گزرتا ہے تو 23ویں روزے تک پہنچتے پہنچتے اس کے اندر کی باطنی حالت ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہو جاتی ہے جو شاخ سے جدا ہونے کے لیے بے چین ہوتا ہے، یعنی اس کی روح دنیا کی تمام ظاہری رغبتوں سے کٹ کر اب صرف یار کے دیدار کی تلاشی بن جاتی ہے۔ ذرا اس منظر کی مٹھاس اور اس کی گہرائی پر غور کریں کہ آج کے دن جو نقاہت آپ کے بدن میں ہے، جو تھکاوٹ آپ کے اعصاب پر طاری ہے اور جو خشکی آپ کے لبوں پر نظر آتی ہے، وہ دراصل غیبی نور کو سمیٹنے کے لیے ایک روحانی برتن تیار کر رہی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تک برتن پوری طرح دنیا کے کچرے سے خالی نہ ہو جائے، اس میں محبوب کی سچی عنایت نہیں سماتی، اور 22 روزوں کی پیاس اور بھوک نے آج بندے کو اس قدر عاجز اور شفاف کر دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے سب سے بڑے دروازے کھولنے پر تیار ہے۔ اہل سنت کے مشائخ کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ 23ویں روزے کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ مدینہ منورہ کے انوارات کی ایسی خوشبو لے کر آتا ہے جو بندے کو گناہوں کی بدبو سے دور کر دیتی ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں یہ بندگی کی جوانی کا وہ وقت ہے کہ جب بندہ محض رسم کی عبادت سے نکل کر بندگی کے اصل کمال پر فائز ہو رہا ہے۔ آج وہ تھک کر عبادت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس ڈر سے زیادہ تڑپ رہا ہے کہ کہیں یہ رحمت کا سایہ مجھ سے رخصت نہ ہو جائے اور میں اب بھی ویسا ہی گناہگار رہوں جیسا رمضان شروع ہونے سے پہلے تھا۔ میرے عزیز دوستو، اس پہلے نقطے میں ہمیں اس حقیقت کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا کہ کیوں 20-25 روزے کے بعد انسانی نفس تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور روح اپنا نورانی جھنڈا لہرانا شروع کر دیتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے گھوڑا دوڑ کے آخری چکر میں اپنی پوری بچی ہوئی طاقت لگا دیتا ہے، بالکل ویسے ہی 23ویں روزے سے لے کر عید کے چاند تک بندہ مومن کا اصل روحانی مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ آج سے پہلے کی بندگی شاید کچھ عادت کا حصہ تھی، مگر آج کے روزے میں بندگی صرف اور صرف اللہ سے سچی وفا اور تڑپ کا نام ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج کے دن اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ذرا دیکھو میرے ان بندوں کو جن کی مٹی سے میں نے تمہیں ڈرایا تھا کہ یہ زمین پر خون بہائیں گے، مگر آج 22 دن گزرنے کے بعد ان کے جسم کمزور ہیں، ہڈیاں کانپ رہی ہیں، بھوک سے معدے جل رہے ہیں، مگر یہ پھر بھی میرے کلام کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، یہ پھر بھی میری یاد میں اپنی راتیں قربان کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ مقام بندگی ہے جہاں پہنچ کر انسان اور اس کے خالق کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ آج کا یہ سورج پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، اب اپنی کمر کس لے، کیونکہ یہ مقدس لمحات دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جو گھڑیاں گزر گئیں وہ تمہاری ملکیت تھیں یا نہیں، پر جو یہ لمحات باقی ہیں
ان میں تو اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو اللہ کے آنسوؤں سے دوبارہ لکھوا سکتا ہے۔ صوفیہ کی محفلوں میں یہ بات بڑے ذوق سے کہی جاتی ہے کہ 23ویں روزے کی اس نقاہت میں جو ولایت کا نور چھپا ہے وہ پورے سال کی عام نفلوں سے کہیں زیادہ بھاری اور قیمتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا بندہ اپنے مالک کی خاطر مٹی بن چکا ہے، اور جو خاک نشین ہو جاتا ہے وہی اپنی ہستی کے تمام بندھنوں سے آزاد ہو کر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، 22 منزلیں پوری کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان پچھلے دنوں میں آپ کے نفس نے کئی بار بغاوت کی ہوگی، کبھی شیطان نے آپ کو سستی دلائی ہوگی، مگر آپ ثابت قدم رہے اور آج آپ 23ویں مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ آج کا سورج آپ کے ماتھے پر اللہ کے منتخب بندوں کی وہ مہر لگا رہا ہے جو ولایت کی پہچان ہے۔ ہمیں اس باطنی تڑپ کو کمزور نہیں ہونے دینا، بلکہ اسے اب اس اشتیاق میں بدلنا ہے کہ ہم شب قدر کی تڑپ میں ایسے بے خود ہو جائے کہ ہمارا ایک ایک سجدہ بندگی کا پچھلا سارا ریکارڈ توڑ دے۔ بزرگان دین اور اہل سنت کے مقتدر علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دن دل کے کونے میں جو ایک ٹھیس اٹھتی ہے، جو اللہ کی یاد میں ایک ایسا درد پیدا ہوتا ہے کہ جسے کسی دنیاوی لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہی سوز دراصل کمال ایمان کی دلیل ہے۔ آج ہمیں یہ احساس اپنے باطن میں پانا چاہیے کہ ہمارا دل بندگی کی راہ میں اب وہ معصوم بچہ نہیں رہا، بلکہ وہ جوان ہو کر اپنی منزل کی طرف پوری تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ اسے اب دنیا کی زرق برق اور بازاروں کی رونقوں سے کوئی سروکار نہیں رہا، بلکہ اسے تو صرف سبز گنبد کے سائے اور سجدہ گاہ کی مٹی میں اللہ کا قرب نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ روحانی سفر ہے جو رمضان کا مہینہ آپ کے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 23ویں روزے کی ان تمام غیبی اور پوشیدہ حقیقتوں سے ہمیشہ واقف رکھے، اور ہماری اس پیاس کو اپنی ابدی رضا کا ایسا ذریعہ بنائے کہ کل جب ہم حوض کوثر پر ہوں تو ہمیں ندامت نہ ہو۔ یہ وہ بیان ہے جو ہمیں صرف کھانا پینا چھوڑنے والا روزے دار نہیں بناتا، بلکہ اللہ کے پیار میں مر مٹنے والا عاشق بناتا ہے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آج کے دن درود ابراہیمی کی کثرت اس قدر کرتے تھے کہ ان کے لب مدینہ منورہ کے ذکر سے مہکتے رہتے تھے، کیونکہ صاحب درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے ہی ہماری یہ مٹتی ہوئی ہمت قبولیت کی شاہراہ پر چڑھتی ہے۔ آج افطار کے وقت جب آپ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اللہ کی نعمتوں کو چھوئیں گے تو یہ یاد رکھنا کہ آپ ایک ایسی سلطنت کے بادشاہ بن چکے ہیں جہاں بھوک بادشاہت ہے اور پیاس ولایت ہے۔ میری آپ سب سے دست بستہ گزارش ہے کہ آج کی ان روحانی ساعتوں کو غفلت کے پردوں میں ضائع مت کریں۔ اپنے موبائل اور دنیاوی بحثوں سے کٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے قلب کے اس جوان ہوتی ہوئی بندگی کو محسوس کریں، کیونکہ آج آپ اللہ کے اس قدر قریب ہیں کہ وہ آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ آپ کے خیالات میں بس چکا ہے۔ جی بھائیو، بندگی کے عروج اور روح کے اس حسین سفر کے تذکرے کے بعد اب ہم 23ویں روزے اور اس سے جڑی اس پرنور رات کی طرف مڑتے ہیں، جس کا نام سن کر ہر مومن کی آنکھوں میں امید کے دیپ جل اٹھتے ہیں اور اس کی روح وجد میں آنے لگتی ہے، یعنی 23ویں کی مبارک شب اور لیلۃ القدر کی مضبوط ترین امید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات چھپا رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر، اور وہ تمام مشائخ اور محدثین جو باطن کے اسرار سے واقف تھے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگرچہ 27ویں کی رات بہت مشہور ہے، مگر 23ویں کی رات کا مرتبہ اور اس رات لیلۃ القدر ہونے کا امکان کسی طور بھی کم نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مستند عالم اور ولی اللہ حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین نے ایک ایسا باطنی قاعدہ بیان فرمایا ہے جس نے اہل نظر کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ سالوں کے تجربے اور مشاہدے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیلۃ القدر کا انحصار اس بات پر ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ کس دن شروع ہوا تھا۔ امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اگر رمضان کا پہلا روزہ اتوار یا بدھ کے دن ہو تو 23ویں کی شب ہی لیلۃ القدر ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس عظیم رات کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
अगर आप इसे हिसाब की जुबान में समझें तो ये 83 साल और 4 महीने बनते हैं। एक औसत इंसान की पूरी जिंदगी 83 साल नहीं होती, मगर मेरे रब की करीमी तो देखिए कि वो गुनाहगार उम्मतियों को सिर्फ एक रात की तौबा पर पूरी जिंदगी की इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। इस 23वीं शब के बारे में हदीस पाक में एक बहुत ही ईमान अफरोज वाक़या मिलता है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा से बाहर रहा करता था। एक बार मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दूर रहता हूँ और रोज़ाना मस्जिद नबवी नहीं आ सकता। आप मुझे किसी एक ऐसी रात के बारे में बता दें जिसमें मैं मस्जिद में हाजिर होकर इबादत करूं। मेरे प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में आहिस्ता से फरमाया कि 23वीं की शब मस्जिद में आ जाया करो। सुभान अल्लाह। इसी वजह से तारीख में 23वीं की रात को लैलतुल जुहनी भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस रात को छुपाया क्यों? इसलिए ताकि बंदा किसी एक रात पर तकिया करके न बैठ जाए, बल्कि वो पूरी तड़प के साथ हर ताक रात में अपने मालिक को तलाश करे। लेकिन अहले सुन्नत के बुजुर्गों का ये मुशाहिदा रहा है कि जब 23वीं की रात आती है तो आसमान से वो खास तजल्लियां नाजिल होती हैं जो पिछली ताक रातों से मुख्तलिफ होती हैं। आज की इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि आपको इस अनमोल खजाने की कद्र मालूम हो जाए। जरा सोचें, अगर आज की रात वही रात हुई जिसका रब ने वादा किया है, तो आज का एक एक सजदा, आज का एक एक सुभान अल्लाह और आज का एक एक दरूद शरीफ आपके 83 सालों के नामा आमाल में लिख दिया जाएगा। इस रात की अलामतों में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिजा बहुत पुरसुकून होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी, और एक ऐसी गैबी खुशबू महसूस होती है जिसे सिर्फ वो पाकीज़ा दिल सूंघ सकते हैं जिन्होंने तज़किया नफ्स किया हो। सूफिया किराम फरमाते हैं कि 23वीं की रात दरअसल अनवारात इलाही के बंटवारे की रात है, जब मलिकुल मौत और जिब्राइल अमीन फरिश्तों की बारात लेकर ज़मीन पर उतरते हैं तो वो उन लोगों के पास आकर सलाम पेश करते हैं जो अल्लाह की याद में खड़े, बैठे या सजदे में होते हैं। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि 23वें का हिंदसा भी अपने अंदर एक बड़ा भेद रखता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब लैलतुल क़द्र के बारे में बात हुई तो आपने अदद 7 और दीगर कायनाती आदाद से ये साबित किया कि इसका इम्कान ताक रातों में बहुत ज़्यादा है। आज के मादी दौर में हम लैलतुल क़द्र को सिर्फ मस्जिदों की रौनक और झंडियों तक महदूद कर बैठे हैं, मगर बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि असल लैलतुल क़द्र वो है जब तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए और तुम्हारी आंख से तौबा का पहला आंसू निकलकर मुसल्ले पर गिरे। जब बंदा 23वीं की सहरी में उठकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम का नजराना पेश करता है तो मदीना मुनव्वरा से जो करम की लहरें आती हैं वो उसे पुकार पुकार कर कहती हैं कि ए बंदे मांग, आज तेरी हर मांग पूरी होने वाली है। इस रात को गनीमत जाने, क्योंकि आज आसमान वाले की रहमत के दरवाजे चौपट खुले हैं। अगर आज भी हमारी झोली खाली रही तो हमसे बड़ा महरूम कौन होगा। सूफिया का मामूल था कि वो इस रात को जागकर ऐसे गुजारते थे जैसे आज उनकी बारात हो। वो सबसे बेहतरीन लिबास पहनते, खुशबू लगाते और रब के हुजूर सजदा रेज रहते। अहले सुन्नत के मुरीदीन और तमाम आशिकीन को चाहिए कि आज के इस दूसरे नुक्ते को दिल पर नक्श करें कि 23वीं की ये शब हमारे साल भर के गमों को मिटाने और खुशियों को लिखवाने की रात है। ये तकदीर के लिखे को मिटाने और अल्लाह के हुक्म से नई तकदीर लिखवाने की घड़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रात में हर हिकमत वाले मामले का फैसला किया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज की इस रात की ताकत को कम न समझें। हो सकता है यही वो रात हो जिसे जिब्राइल अमीन ने हमारे मुकद्दर के लिए मुंतखब किया हो। जब बंदा इखलास के साथ पुकारता है कि या इलाही मैं हाजिर हूँ, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को, मैंने इसे कितना कमज़ोर पैदा किया था, मगर आज ये 83 सालों की इबादत के बराबर अजर सवाब समेटने के लिए मुसल्ले पर जमा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि पिछले साल शाबान की 15वीं शब को जो बजट बना था, आज 23वीं रमज़ान की ये रात उस बजट की तकसीम का फाइनल दिन हो सकता है। लिहाजा आपका हर लम्हा जिक्र इलाही में गुजरना चाहिए। इस गुफ्तगू के दूसरे हिस्से का हासिल यही है कि अपने घरों में मुसल्ले बिछाएं, तिलावत कुरान की लज्जत पाएं और ख़ास तौर पर अंसारी सहाबी की इस नसीहत को याद रखें कि दरूद पाक के वसीले से अल्लाह की हर खैर अपने दामन में समेट लें। जी भाइयों,
लैलतुल क़द्र की इस अजीम और मुबारक पुकार और 23वीं शब के अनवारात के तज़किरे के बाद अब हम बंदगी के इस इंतहाई लतीफ़ और तीसरे नुक्ते की तरफ आते हैं, जिसका ताल्लुक़ कायनात के उस सबसे बड़े सच से है जिसे जान लेना ही मारिफत का आगाज़ है, यानी सिफ़त इलाही या करीब की तजल्ली और शहरक से भी ज़्यादा करीब का वो छुपा हुआ राज जिसे 23वां रोज़ा एक साहिब दिल मोमिन के सामने अयां कर देता है। मेरे नहायत ही प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनगिनत सिफ़ाती नाम है और उनमें से एक नाम अल करीब है, जिसका मतलब है वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा करीब है, जो हर पल साथ है और जो किसी भी फासले से पाक है। मुफस्सिरीन और सूफियाए किराम फरमाते हैं कि पिछले 22 रोज़ों की मुसलसल प्यास और भूख ने बंदे के बातिन के उस मादी पर्दे को इतना बारीक और इतना झिना कर दिया है कि अब वो इस तजल्ली को बराह रास्त महसूस कर सकता है जो गफलत के पर्दों में छुपी हुई थी। कुरान मजीद में मेरे रब ने इस कुर्बत का तस्किरा इस प्यारे अंदाज में फरमाया है कि जिसको सुनकर मोमिन की रूह वजद में आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, यानी ए महबूब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो उन्हें फरमा दें कि मैं तो बहुत करीब हूँ। ज़रा इस जुमले की मिठास पर गौर करें कि अल्लाह ने यहाँ अपनी दूरी का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बंदे को बराह रास्त ये पैगाम दिया है कि मैं तुम्हारे पुकारने से पहले तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ। और फिर सूरह काफ में वो अजीमुशान बात कही गई जिसने अक़ल के ऐवानों में हलचल मचा दी। फरमाया, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी और हम तो उस इंसान की शहरक से भी ज़्यादा उसके करीब हैं। मेरे दोस्तों, सूफियाए किराम फरमाते हैं कि क़ुर्बत दो तरह की होती है, एक जिस्मानी क़ुर्बत जो ज़मान व मकान की मोहताज है और दूसरी रूहानी क़ुर्बत जो हर किस्म की पैमाइश से पाक है। अल्लाह की क़ुर्बत कोई जिस्मानी क़ुर्बत नहीं है क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक है, बल्कि उसका क़ुर्ब वो एहसास है जिसमें बंदा हर तरफ अपने मालिक के मुशाहिदे में मस्त रहता है। 23वां रोज़ा बंदगी के इस मकाम पर हमें इसलिए लाता है कि आज 22 दिन के मुजाहिदे ने नफ्से अम्मारा का ज़ोर तोड़ दिया है और रूह को वो क़ुव्वत अता कर दी है कि वो आज अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते वक्त और अपने रब से मुनाजात करते वक्त शहरक के उस फासले को भी ख़त्म होता हुआ पाती है। आज के इस तीसरे नुक्ते की गहराई ये है कि हम ये जानें कि हम अल्लाह को 7 आसमानों के ऊपर तलाश कर रहे होते हैं, हालांकि वो तो हमारे उन ख्यालात में बसा हुआ है जो अभी हमारी ज़ुबान तक भी नहीं पहुँचे। सूफिया की महफिलों में ये बात बड़े सोज से कही जाती है कि अल्लाह से दूरी हमारी तरफ से है क्योंकि हम गाफिल हैं। अल्लाह तो कभी अपने बंदे से दूर हुआ ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सूरज कायनात से लाखों मील दूर है मगर उसकी रोशनी ज़मीन पर पड़े हुए एक छोटे से कतरे में भी झलक रही होती है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह अर्शे आज़म पर है मगर उसका नूर और उसका इल्म बंदे के सीने में मौजूद लताइफ को ज़िंदगी बख्श रहा है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब तुम 23वें रोज़े की हालत में होते हो और इफ्तार से थोड़ी देर पहले जब नकाहत अपनी इंतहा पर होती है, उस वक्त तुम्हारा दिल कायनात की तमाम मादी दिलचस्पियों से कट जाता है और जब मादी ताल्लुकात टूटते हैं तभी रब की सिफत अल करीब बंदे पर वो राज खोलती है जो 83 साल की इबादत से भी बेहतर है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि वो 23वें रोज़े के दिन कसरत से अल्लाह की हुजूरी का मुशाहिदा करते थे। वो ये तसव्वुर करते थे कि मेरा रब मुझे इस लम्हे देख रहा है, वो मेरे दिल में आने वाले दर्द से भी वाकिफ़ है और मेरी तड़प का हिसाब भी रख रहा है। ज़रा सोचें कि अगर आज के इस पुरनूर दिन हमें ये यकीन आ जाए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो क्या हमारे दिल से दुनिया का खौफ नहीं निकल जाएगा? क्या हम रिज़्क़ के लिए परेशान होंगे? क्या हम दुश्मनों की साजिशों से डरेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जिसके साथ शहरग से भी करीब रब मौजूद हो उसे कायनात में किसी और की परवाह नहीं रहती। सूफिया फरमाते हैं कि अल करीब का इदराक उस वक्त होता है जब बंदा फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लज़्ज़त पा लेता है। आज जब हमें पानी की प्यास लगी है तो हमें इस बातनी प्यास का एहसास भी होना चाहिए जो रूह को तड़पा रही है, और जब बंदा इस तड़प में तड़पता है तो रब खुद उसके सीने में वो सुकून उतार देता है जो बंदगी की इंतहा है। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि 23वां रोज़ा सिफ़त क़ुद्दूस और सिफ़त करीब के संगम पर वाक़े है, जिसका मतलब है कि पाकीज़गी और क़ुर्बत का एक ऐसा मिलाप आज होने जा रहा है जिसका फ़ायदा कल हश्र के मैदान में नज़र आएगा।
बुजुर्गान दीन का ये मुशाहिदा रहा है कि आज के दिन जो लोग एतिकाफ में बैठे होते हैं उनके लिए गैब के इशारे इतने वाज़े हो जाते हैं कि उन्हें हर इबादत में अल्लाह का कलाम सुनना नसीब होता है। हमें चाहिए कि आज हम अपने दिल को एक साफ सुथरा कमरा बनाएं जिसमें कोई गैर मौजूद न हो और फिर उस रब की कुद्दूसी और उसकी कुर्बत को खुशामदीद कहें। आज का ये नुक्ता हमें ये सबक देता है कि इबादत सिर्फ गर्दन झुकाने का नाम नहीं है, बल्कि बंदगी तो हर वक्त अपने मालिक के हुजूर पाए जाने का नाम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जितना मेरा जिक्र करता है मैं उतना ही उसके करीब होता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसे अपने ख़ास कुर्ब का जाम पिला देता हूँ। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि शहरक के करीब होने का राज ये भी है कि जैसे शहरक कट जाए तो इंसान मर जाता है, वैसे ही अगर अल्लाह का फैज़ बंदे के क़ल्ब तक पहुँचना बंद हो जाए तो वो रूह मुर्दा हो जाती है। आज 23वां रोज़ा हमें इसी हयात जावीद की दावत दे रहा है कि ए अल्लाह के बंदे, तो अपने मालिक के पास वापस आ जा, क्योंकि उसका दर तेरे घर से भी ज़्यादा तेरे करीब है। सूफिया की महफिलों में आज के दिन ख़ास तौर पर इस बात का तज़किरा होता है कि लैलतुल क़द्र का इम्कान जिस रात ज़्यादा हो उस दिन रब की क़ुर्बत अपने जोबन पर होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल खामोशी में बदल लें और अपने दिल से बातें करें, क्योंकि अल्लाह अब वहीं पर जलवागर है। मेरी आप सब से गुजारिश है कि आज इफ्तार की इन घड़ियों में ये तसव्वुर लाजमी रखें कि मैं तन्हा नहीं हूँ, बल्कि मेरा रब मुझसे बातें कर रहा है। वो मुझे अपने सजदे की मिठास अता फरमा रहा है और वो मेरे आंसुओं को अपनी रहमत के दामन में छुपा रहा है। जब आप इस जज्बे से सजदा करेंगे तो खुदा की कसम आपको महसूस होगा कि आपके और रब के दरमियान जो दूरी के हज़ारों पर्दे थे वो आज पाश पाश हो चुके हैं। यही वो कुर्ब है जिसे सूफिया फना का नाम देते हैं कि बंदा मिट जाता है और रब बाकी रहता है। अल्लाह ताला हमें 23वें रोज़े की इन पोशीदा बरकतों को समेटने और सिफ़त अल-क़रीब की तजल्ली में डूब जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये वो रूहानी हकीकत है जो हमें आम मुसलमानों से निकाल कर ख़वास के दर्जे में ला खड़ा करती है और हमें ये बताती है कि जिसको रब मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जी भाइयों, सिफ़्ते करीब की नूरानी और बरकतों भरी तजल्लियात के तज़किरे के बाद अब हम 23वें रोज़े के इस इंतहाई रिक़्क़त आमेज़, दर्दनाक और जज्बाती पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ बंदगी की उन सातों से है जहां ईमान का इम्तिहान सब्र के साथ जुड़ा होता है। यानी मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद स्वयं की वो घड़ियाँ और आले पाक की मश्क़ बंदगी। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़रा उस अलमनाक वक्त का तसव्वुर करें जब मदीना और कूफा की फ़िज़ाएँ सोगवार थीं। अभी 2 रोज़ कबल 21 रमज़ानुल मुबारक की उस अंधेरी सुबह को इल्म व हिकमत का वो रोशन सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया था, जिसे कायनात असदुल्लाहिल गालिब यानी अल्लाह का शेर कहती थी। 23 रमज़ानुल मुबारक का ये दिन मौलाए कायनात के विसाल के बाद वो तीसरा दिन है जब इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन सदमे और गम की उन गहराइयों में थे जिनका कोई ठिकाना न था। मगर कुर्बान जाएं अहले बैत अतहार के उस तक़वा और बंदगी के अज़्म पर कि जिगर छलनी था, आंखें पुरनम थीं, बाप का साया सर से उठ चुका था, यतीमी का बोझ कंधों पर था, मगर उन शहजादों और शहजादियों ने एक लम्हे के लिए भी अपने रब की बंदगी और रोज़े में कमी नहीं आने दी थी। सूफिया किराम और मुफस्सिरीन एज़ाम फरमाते हैं कि मौला अली रदी अल्लाह अन्हु ने बिस्तर शहादत पर जो आखिरी वसीयतें फरमाई थीं, उनमें सबसे बड़ी वसीयत ये थी कि मेरे बेटो, कभी नमाज और अल्लाह के ज़िक्र को न छोड़ना, चाहे हालात जैसे भी हों। बस 23 रमज़ान का ये दिन आले रसूल के लिए इसी वसीयत की तकमील का दिन था। अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मुरीदीन और मुहिब्बीन के लिए ये मकाम फ़िक्र है कि जिस घर पर इतने बड़े गम का पहाड़ टूटा हो, वहाँ बंदगी का क्या आलम होगा। रिवायतों में मिलता है कि जब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा अपने बाबा की शहादत के तीसरे रोज़ रोज़े की हालत में मुसल्लों पर बैठे थे तो आसमान के फरिश्ते भी पुकार उठे थे कि वाकई ये वो लोग हैं जिनसे रब राज़ी है और जो रब से राज़ी हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 23वीं की ये ताक रात जब अहले बैत पर आई तो वो अपनी तपती हुई आँखों और गमज़दा दिलों के साथ शब क़द्र को तलाश कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि मुहिब का असल काम ही ये है कि महबूब अगर तकलीफ़ में भी डाल दे तो उसकी चौखट नहीं छोड़ी जाती। सूफिया किराम फरमाते हैं कि मौला अली रदी अल्लाह अन्हु जो विलायत के इमाम हैं और जिनसे तमाम सलासिल का फैज़ जारी है, उनके स्वयं का ये दिन दरअसल इस बात की अलामत है कि अली की विलायत आज अपने बेटों के सीनों में मुंतकिल हो रही है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम आज 23वां रोज़ा रखते हो तो ये याद रखो कि तुम्हारा रोज़ा अहले बैत के उसी गम और उसी बंदगी का तसलसल है।
तुम्हें चाहिए कि तुम अपने दिल को मौला अली की मोहब्बत से मुनव्वर करो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ निफाक है। आजकल के मादी दौर में हम थोड़ी सी परेशानी पर सजदे छोड़ देते हैं, मगर हमें उन हस्तियों की तरफ देखना चाहिए कि जिनके नाना रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिनके वालिद बाबुल इल्म थे। उन्होंने रोज़े की निकाहत में भी और शहादत के सदमे में भी रब को पुकारना नहीं छोड़ा। यही वो मुश्क़ बंदगी है जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी दुख का नाम हो या सुख का, मोमिन का रिश्ता सिर्फ सजदा गाह से जुड़ा होना चाहिए। बुजुर्गान दीन का ये मुशाहिदा रहा है कि आज की रात यानी 23वीं शब मौला अली रदी अल्लाह अन्हु के वसीले से गरीबों और तड़पने वाले दिलों की दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं, क्योंकि आज मौला के यतीम बच्चे जब हाथ उठाते हैं तो अर्श लरज़ उठता है और अल्लाह उनके सदक़े पूरी उम्मत पर नज़र करम फरमाता है। सूफिया की महफिलों में आज के दिन ख़ास तौर पर उस सब्र का जिक्र होता है जो अहले बैत ने इख्तियार किया था। ये वो सब्र था जिसने करबला के लिए रास्ता बनाया और जिसने ये साबित कर दिया कि आले पाक सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि बंदगी की असल वारिस है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज जब आप रोज़े की प्यास महसूस करें तो ज़रा इस प्यास को भी याद करें जो अहले बैत के लबों पर अपने सरदार के गम की वजह से थी। जब आप तिलावत करें तो उनकी उस तिलावत को याद करें जो उन्होंने जुदाई के लम्हों में की थी। 23वां रोज़ा बंदगी की जवानी इसलिए भी है कि आज हमारे पास अली की जुर्रत और हुसैन का सब्र मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत अतहार की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें उन पाकीज़ा हस्तियों के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसा नफ्स अता करे जो मुश्किल वक्त में भी तस्बीह करना न भूले। मुफस्सिरीन अज़ाम लिखते हैं कि आज का ये गम दरअसल बंदगी के पहले हफ्तों की कसाफतों को धोकर साफ करने के लिए आया है, क्योंकि आंसुओं से दिल जितना जल्द साफ होता है इतना किसी और अमल से नहीं होता। आज के इस चौथे नुक्ते की गहराई ये है कि हम अल्लाह के दोस्तों की याद में खुद को इस तरह फना कर दें कि हमारा वजूद भी मदीना मुनव्वरा के अनवारात का अक्स बन जाए। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जैसे कामिलीन आज के दिन मौला अली की शान में नजराना अक़ीदत पेश करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस पर मौला की नज़र करम हो गई वो पार हो गया। ये वो गुफ्तगू है जो हमें सिर्फ जिस्मानी रोज़ा नहीं सिखाती बल्कि हमारे सीने में अहले बैत का दर्द पैदा करती है। और याद रखिए कि जिस सीने में अहले बैत की मोहब्बत का दर्द है उसे दोज़ख की आग छू भी नहीं सकती। जी भाइयों, अहले बैत अतहार की बेमिसाल इस्तकामत और बंदगी के तज़किरे के बाद अब हम 23वें रोज़े और इस मुबारक रात के 5वें और इंतहाई पुरनूर मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के प्यारे दोस्तों और औलिया अल्लाह की उन तन्हाइयों से है जहां पहुंचकर अक्ल के चराग बुझ जाते हैं और इश्क की हुक्मरानी शुरू होती है, यानी औलिया अल्लाह की बेदारी और पुकार सहरी। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए कि औलिया अल्लाह के नज़दीक रमज़ान का हर लम्हा एक ऐसा ख़जाना है जिसकी कीमत कायनात की तमाम दौलत मिलकर भी अदा नहीं कर सकती। मगर जब आखिरी अशरे की ताक रातें और ख़ास तौर पर 23वें की ये शब आती है तो उनके जज्ब मस्ती का आलम ही कुछ और होता है। सिलसिला आलिया चिश्तिया, नक्शबंदिया और कादरिया के तमाम मशाइख इस रात को यार से मिलने की रात और मदीना मुनव्वरा के अनवारात की तकसीम की रात कहते थे। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि 23वीं शब वो रात है जब रब्बे कायनात के खुसूसी फरिश्ते अपने हाथों में वो प्याले लेकर उतरते हैं जिनमें मोहब्बत इलाही का शहद भरा होता है, और वो ये इनाम सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो रातों को अपने बिस्तर छोड़कर अपने रब के लिए जागते हैं। सूफियाए कराम का ये मुशाहिदा रहा है कि जब 23वें रोज़े की सहरी का वक्त आता है तो कायनात की हर चीज़ खामोश हो जाती है, मगर अल्लाह के वलियों का दिल धक धक के साथ अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं दे रहा होता है। इसे रूहानियत की ज़ुबान में नाराए मस्ताना कहा जाता है, यानी ऐसी पुकार जो बंदे को खुद से बेगाना कर दे और उसे सिर्फ अपने महबूब के जलवे नज़र आने लगें। बुजुर्गान दीन इस रात के बारे में फरमाते हैं कि पिछले 22 रोज़ों की मशक्क़त ने अब रूह को इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि अब उसे भूख और प्यास सताती नहीं, बल्कि उसे तो अब सजदों में वो लज्जत मिलती है कि जिसके बाद पूरी दुनिया एक खिलौने से ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होती। अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों की तारीख़ उठाकर देखें तो पता चलता है कि 23वीं रमज़ान की इन घड़ियों में वो किस कदर तड़पते थे कि एक अल्लाह वाले का वाक़या मिलता है कि वो इस रात को इतनी लंबी तस्बीह पढ़ते थे कि उनकी ज़ुबान ज़ख्मी हो जाती थी, मगर उन्हें एहसास नहीं होता था।
जब मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं, तो फरमाया कि जब तक महबूब राजी न हो जाए एक आशिक को करार नहीं मिलता, और आज तो वो रात है जब तकदीरें लिखी जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि जब मेरा मालिक मेरा नाम लिख रहा हो तो मेरी पुकार उसे सुनाई दे जाए। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह की इस बेदारी का एक और बड़ा मकसद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बातनी राबता कायम करना होता था कि जिसके ज़रिए उन्हें ख्वाब में मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत होती थी। सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स 23वें रोज़े को मुकम्मल अदब और सच्ची पुकार के साथ गुजारता है, अल्लाह ताला उसे अपनी सिफत करीब का वो हिस्सा अता फरमाता है कि उसे आलम बेदारी में भी वो कैफियत महसूस होती हैं जो सिर्फ खवास का हिस्सा है। बुजुर्गाने दीन का मामूल था कि वो इस दिन कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते थे और अपना मुंह मदीना मुनव्वरा की तरफ करके ये अर्ज़ करते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर अपना नज़र करम फरमाएं कि आपका महीना रुखसत हो रहा है और आपकी मग़फ़िरत की घड़ियां बीत रही हैं। आजकल हम इस मुबारक रात को सोशल मीडिया और फजूल बहसों में ज़ाया कर देते हैं, मगर हमें ये देखना होगा कि क्या हमारी सहरी में वही सूज़ मौजूद है जो सल्फ़ सालहीन की सहरी में हुआ करता था। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि 23वें रोज़े की असर से लेकर सहरी तक के लम्हात अनवारात इलाही की बारिश के लम्हात होते हैं जो सिर्फ तड़पने वालों को नसीब होते हैं। मेरी आप सब से गुजारिश है कि आज की इस रात और आने वाले दिन को औलिया अल्लाह की इस पुकार का हिस्सा बनाएं, अपनी तन्हाइयों को पाक करें और सच्ची तौबा के साथ अल्लाह के सामने खड़े हों, ताकि आपका नाम भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सके जिनके लिए रब खुद फरमाता है कि वो मुझसे राज़ी और मैं उनसे राज़ी। आज का ये नुक्ता हमें यही सिखाता है कि विलायत का रास्ता पाँव की ठोकर में नहीं बल्कि आँख के आंसू में छुपा है। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह के इस सोज और तड़प से हिस्सा अता फरमाए। एक मिनट भाइयों, औलिया अल्लाह के इस इश्क और उनकी बेदारी के ईमान अफरोज़ तस्करे के बाद अब हम इस रूहानी सफ़र के छठे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दरअसल हमारी इस 23 दिन की मुसलसल मेहनत का निचोड़ और हमारी बंदगी की महराज है, यानी 23वें रोज़े की ख़ास कबूलियत और जहन्नुम से आज़ादी का वो आखिरी बड़ा मौका जो अफ्तार के वक्त हर प्यासे दिल की पुकार बनकर अर्श इलाही के कवाड़ खटखटाता है। आइए तफसील जानते हैं उमर से। जी उमर। शुक्रिया उस्मान साहब। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा इस मंजर की मिठास और इसकी रूहानियत को महसूस करें कि जब 23वें रोज़े का सूरज अपने सफ़र को मुकम्मल करके ढलने लगता है और हर तरफ से मग़फ़िरत की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, उस वक्त बंदगी का वो मकाम आता है जिसे पाने के लिए पूरी कायनात सजदा रेज हो जाती है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ्तार के वक्त हर रोज़ ऐसे 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। और फिर जब जुमे की रात या रमज़ान की ऐसी अजीम ताक रातें आती हैं तो उनमें इतने लोगों को बख्शा जाता है कि जिनका हिसाब सिर्फ वही रब जानता है। मेरे भाइयों, आज हम अशरा निजात यानी आग से आज़ादी के अशरे में हैं और आज का दिन हमारी इनफरादी ज़िंदगी का फैसला कुन दिन है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि पिछले 22 रोज़ों की मशक्क़त ने अब तुम्हारे बातिन को बिल्कुल वैसे ही साफ कर दिया है जैसे सोना आग में जलकर पाक हो जाता है। और आज जब आप प्यास की शिद्दत की वजह से मुसल्ले पर आजिज़ी की तस्वीर बने बैठे हैं तो आपकी ये खामोशी भी कायनात की हर बुलंद आवाज़ से ज़्यादा ताकतवर है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि 23वें रोज़े का इफ्तार उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है जिन्होंने अपनी हस्ती को अल्लाह की मर्जी में मिटा दिया हो। आज के इस मुबारक दिन का ख़ास वजीफ़ा दुरूद खिज़री की कसरत और ये पुकार है कि या अल्लाह, मैं तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे जहन्नुम से आज़ादी की भीख मांगता हूँ। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि जब बंदा 23वीं की ताक रात से पहले अपने हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि जिसने 23 दिन मेरे नाम पर पहरा दिया है, आज मैं उसकी तिश्ना लबी को कैसे रद्द करूं। आज की इस घड़ी में तकदीर के लिखे को मिटाने और नई बख्त बेदार करने की ताकत मौजूद है। सूफिया की महफिलों में ये बात बड़े सोच से कही जाती है कि अगर पिछले अशरों में भी किसी से गफलत हुई है तो आज वो लम्हा है जब आप दौड़ी हुई रहमत को दोबारा पकड़ सकते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी झोलियां फैला दें और इस रहीम व करीम रब से वो सब कुछ मांग लें
जिसकी तड़प हमें इस तपते हुए सहरा जैसे आलम में भी इबादत पर कायम रखे हुए है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो के इख्तिताम पर अपने तमाम प्यारों को इस दुआ में शामिल करें जो हर टूटे हुए दिल की आवाज़ है और जिसकी कबूलियत का आज वादा किया गया है। आइए अब मिलकर अपने रब के हुजूर वो फरियाद करते हैं जो बंदगी का हासिल है। या अल्लाह, या हय्यो या कय्यूम, या जुलजलाल वल इकराम, ए कायनात के अकेले बादशाह और ए टूटे हुए दिलों के वाहिद सहारा, हम तेरे गुनहगार और आजिज बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अल्लाह, आज हमारा 23वां रोज़ा मुकम्मल हो रहा है और हम तेरी ताक रात की बरकतों के मुंतज़िर हैं। बारी ताला, हमें इतराफ़ करते हैं कि हमसे 23 दिन में बहुत सी खताएं हुईं। हमारी नमाजों में वो खुशू ना रहा जो होना चाहिए था, हमारी तिलावतों में वो अदब ना रहा जो तेरा हक था। मगर मेरे मालिक, हम जैसे भी हैं तो तेरे ही बंदे। या अल्लाह, आज हमें सिफत करीब और सिफत वदूद के सदके अपने से दूर न करना। या अल्लाह, हमें मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह अन्हो की इस्तिकामत का सदका अता फरमा और हमारे ईमान को मजबूत कर दे। या अल्लाह, आज की ये प्यास हमारे उन गुनाहों की आग को बुझा दे जो हमने 11 महीनों की गफलत में जमा किए हैं। या अल्लाह, हमें लैलतुल क़द्र पाने वालों की फहरिस्त में शामिल फरमा दे। हमें वो एक रात अता कर दे जो 83 साल की बंदगी से बेहतर है। ए बारी ताला, हमें गुस्से, हसद और तकब्बुर की बातनी बीमारियों से निजात दे और हमारे दिलों को अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत से लबरेज कर दे। मौला, जो बीमार है उन्हें अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शिफाए कामिला अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी मुश्किलें आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें सालेह औलाद नसीब फरमा। और या अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं गैब से उनकी मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में हम पर रहम किया था। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा को इज्जत और गलबा अता फरमा। फ़लस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की नुसरत फरमा। या अल्लाह, हमें ऐसी मौत देना जो तेरी रज़ा की मौत हो, जो बेदारी ईमान की मौत हो, और जब मलकुल मौत सामने खड़ा हो तो हमारी ज़बान पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। या अल्लाह, हमें इस रमज़ान के बकिया अय्याम को पूरे अदब और तड़प के साथ गुजारने की तौफीक दे और हमें ईद के दिन बख्शिश का इनाम अता फरमा। हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को कबूल फरमा और इस वीडियो के एक एक लफ्ज़ को हमारे लिए और तमाम सुनने वालों के लिए हिदायत का ज़रिया बना दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये 23वें रोज़े की वो बातनी तफसीलात थीं जो आप तक पहुँचाईं। अब आपका काम है कि इसे सदका जारिया समझकर फैलाएं ताकि कोई भी मुसलमान आज की इन बरक़ात से महरूम न रहे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।